इसलिए मैं तरुण आपको बाद में इनवाइट करूंगा। पहले मैं Yes, sir. Or प्रॉमिला मैडम को इनवाइट after करता हूँ, लेकिन madam. बेटा आप कैमरा ऑफ मत कीजिएगा। सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखें प्लीज। तो स्पीच देने वाले को लगता है कि हाँ उसको इतने लोग सुन रहे। अब क्योंकि आपको बोलना नहीं है तो कैमरा ऑन रख के आप सुनिए। सो टुडे फर्स्टली I would like to invite Pramila madam. Put your hands together for her. Thank you guys. Hello everyone. Good morning to all. First of all, thank you sir and ma'am to give me an opportunity to present my first speech before all of you. Today I am sharing my daily routine in present simple tense. Before starting my daily routine, I introduce myself. I am Mrs. Mehta from Nagpur. I am a homemaker. I am from joint family. I I am in my late 60th. I am blessed with three sons. They all are married. They are government civil contractor. They do their work properly. They are very honest. They are down to earth. My elder daughter-in-law is dietitian and second one is Ayurvedic doctor but not in practicing. Third one is dentist. She does her practice in her own clinic carefully. Apart of these, I am blessed with 6 grandchildren. They are all very intelligent and smart. I am early riser. I wake up at 4:30. As soon as I wake up, I pray God for every beautiful thing. Then I make my bed in no time. I brush my teeth and face my wash. Then I set my hair properly. I sit for, thereafter I sit for prayer, that is meditation, with the grace of God. I think God is the friend of silence. It is, it is such difficult to find Him within own heart. Thereafter, I have 2 glasses of hot lime water and go for a walk in the garden. In the garden, there are so many beautiful flowers and nature beauty. I enjoy very much there. After walking, I prepare green tea myself. I have green tea as I like very much. Later on, my cook comes at 9 o'clock for preparing breakfast and lunch. He cooks very tasty food of different types, North Indian as well as South Indian also. I order him to prepare particular breakfast and lunch. Meanwhile, I cut some seasonal fruits myself for my breakfast at 9:30 a.m. Later on, my cook comes at 10:30 for cleaning the entire house. I make her do and household chores. Thereafter, I sit with my grandchildren and enjoy very much.
I relax and react with each other. Later on, my gardener comes for maintaining the garden. He brings very beautiful and seasonal plants and flowers for plantation. I watch with him also. Later on, I have lunch at 2:30 a.m. and then I take rest for some time. After lunch and after taking rest, I prepare black tea myself. I like black tea very much and get ready for uh, online Jhasar classes. Jhasar and ma'am are very jolly nature. I enjoy very much in his class. The way of teaching, their way of teaching is very different from other teachers. There are 10, 12, about 10 or 12 students always present in their class. They all are enjoy very much. They all are young, intelligent. Among them, I also feel myself young also. And then after finishing coaching, I go for a walk in the garden situated near my house. And sometimes I go at that time in the club also with my friends and enjoy there very much. Later on, cook prepares dinner. I have dinner before 8 o'clock. Then, after taking dinner, I watch TV till 10:30, and then I go to bed and brush my teeth, and then I use my mobile for some times. I attend lots of calls, uh, international and national calls also. I attend. I attend lots of calls, lots of international and international calls. Thereafter, about 11 o'clock, finally, I go to bed to sleep. Uh, this is my daily routine. I want to say something about God. God is like oxygen. You can't see Him, but you can't live without Him. This is my daily routine. Thank you all for listeners. Thank you, sir and ma'am. Thank you. हाँ दोस्तों, ताली बजाते समय आप चाहे तो माइक ऑन रख सकते हैं। स्नेहा ने अपना ध्यान नहीं दिया, पूरे समय उसका माइक ऑन था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां से कोई शोर नहीं आया। हम टाइप कर रहे थे लेकिन टाइपिंग में हमारी स्पीड कम है, तो तब तक जब हमें पता चला कि स्नेहा का माइक ऑन है, अब उसने बीच में किया था कि शुरू से ही ऑन था, पता नहीं। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये थी कोई शोरगुल नहीं आया, तो स्पीच बहुत अच्छे से सुनने मिली और इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है, तो इसे आप बाद में भी देख सकते हैं। मैडम, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा मेहता मैडम से कि आपने इसे किसी पेज पर तैयार किया या जहन में तैयार किया? Sir, I have prepared before 15 days, 15 and 20 days before. पहले तो आप इस सेंटेंस को मेरे साथ बोलिए। I prepared I prepared prepared prepared
This speech This speech 15 days 15 days before. ago. Ago. Okay, hi. Ago. जूही जी, आप भी इसी सेंटेंस को बोलिए और फिर हिंदी भी बोलिए। प्रमिला मैडम म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। I prepared this speech is 15 days ago. Sorry. कोई बात नहीं। साकेत आप बोल दीजिए। I have prepared this speech 15 days ago. सॉरी, अब हम Sorry. मान्या को ही कष्ट देंगे। मान्या, आप हमें ज्यादा अवेयर दिखाई दे रहे हैं, आप बोलिए। I prepared this speech 15 days ago. एब्सोल्युटली, हिंदी भी बोलिए। 15 दिन पहले मैंने ये स्पीच तैयार की थी। मान्या। यस सर। सॉरी, सौम्या। सॉरी मान्या, म्यूट योरसेल्फ। सौम्या, आर यू देयर? श्वेता, आर you there? Yes, sir. Speak. I prepared this speech 15 days ago. 15 दिन पहले मैंने यह स्पीच तैयार की थी। स्नेहा, आप बोलिए। थैंक यू। स्नेहा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो तरुण आप बोलिए। I prepared this speech 15 days ago. मैंने ये 15 दिन पहले स्पीच तैयार की थी। थैंक यू। जूही जी आप बोलिए। I prepared this speech 15 days ago. मैंने 15 दिन पहले मैंने यह स्पीच तैयार की थी। एक छोटी सी गलती हुई है जूही जी आपसे। ये बहुत ज्यादा मात्रा में सभी बच्चों से होती है, सभी क्लास में। जैसे हम बोलते हैं 15, तो एक वचन ना हो के वो एक से अधिक वचन हो जाता है। तो डे में एस लगाना जरूरी। Days. Okay, sir. I prepared this speech 15 days ago. Am I right? हालांकि इस बार भी गूगल ने एस नहीं लगाया, लेकिन आपने बोला होगा, ये हम विश्वास करते हैं। साकेत। I prepared this speech 15 days ago. मैंने यह स्पीच 15 दिन पहले तैयार की। सर, कैन बी यूज बैक इंस्टेड ऑफ अगो? 15 अभी days back. अभी एक शब्द रखवा दे साकेत, उसके बाद फिर आगे बढ़े, है ना? मतलब सही होगा कि नहीं ये? तुम्हारा सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, इसलिए तो हम उसको आगे बढ़ा रहे। ओके सर। थैंक यू। प्रमिला मैडम, एक बार आप और बोल दीजिए। I had prepared this speech 15 days ago. जूही जी, आपने इनकार किया, लेकिन आपको सॉरी बोलना चाहिए। स्नेहा आप बोलिए, लेकिन वो वाला मत बोलिएगा जो प्रमिला मैडम ने बोला, उन्होंने गलत किया है। Sir, I prepared this speech 15 days ago. Sorry. Thank you. Now who is rest? I am rest. I am नहीं rest. नहीं, जो लोग यहाँ हमें स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, ये आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आप तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 others भी लिखा हुआ है, जो हमें नहीं देख रहे हैं, तो हम उनको पहले ले आते हैं फिर, क्योंकि आप तो 2 बार बोल चुके हैं, इसलिए पहले वो लोग, जैसे सोनिका ने जैसे ही आई एम रेस्ट बोला, तो वो स्क्रीन पे आ गई। देखिए, अभी तक वो स्क्रीन से बाहर थे। सोनिका आप बोलिए। I prepared this speech 15 days ago. मैंने यह स्पीच 15 दिन पहले तैयार की थी। थैंक यू। हु इज रेस्ट, जो स्क्रीन के पीछे है, जो दिख नहीं रहा? इज एनीबॉडी रेस्ट? Sir, Rupa.
हाँ रूपा जी आप बोलिए। I prepared this speech is 15 days ago. मैंने यह स्पीच 15 दिन पहले तैयार की थी। जूही जी सॉरी आप इस बार 3 का सॉरी दंड सॉरी दीजिए। सर नहीं आप 3 का दंड दीजिए। सॉरी सर। आपके पास लिखे हैं इंटरेक्टिव इडियम्स? यस सर, इंटरेक्टिव बोल देती हूँ। कुछ भी बोल दी। हियर वी गो शुरू करते हैं। हियर यू आर यह लीजिए, एंड इट विल डू चलेगा। थैंक यू। सोनिका आप भी 3 का दंड दीजिए। You have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट मॉल। सब्र का फल मीठा होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। थैंक यू साकेत आप भी। सर मैंने सॉरी बोला था वैसे। अच्छा आपने सॉरी बोला था, आप मत दीजिए। स्नेहा? Yes, sir. थैंक यू। तरुण? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। रूपल जी? श्वेता? मच काय लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीके पकवान। श्वेता बेटा 1 मिनट रुकना। तुमने बोलना पहले शुरू कर दिया था और माइक्रोफोन 1 सेकंड बाद ऑन किया, तो इसको फिर से बोलो। यस सर। मच क्राई लिटिल वूल, ऊंची अरे तो फिर दुकान तुमने फीके ये पकवान। गलत लिखा हुआ है बेटा, ये फिर गलत लिखा है तुमने। सोनिका तुम्हें मिला है ये? नहीं सर। नहीं मिला। साकेत? नो सर। तरुण? नो सर, नहीं मिला। ये कहाँ से मिला तुम्हें श्वेता? सर एक बुक रखी थी तो मैंने उससे पढ़ा था पहले। आप लोग हम इसको नकार नहीं रहे सिरे से, लेकिन जो इंटरेक्टिविटी अब हम दे रहे हैं, आप अगर उन्हीं का प्रयोग करेंगे तो वो जल्दी से जुबान पे आएंगे, क्योंकि वो सबके पास लिखे हुए हैं। ओके सर। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हेयर यू आर चलेगा, सॉरी हेयर यू आर ये लीजिए। थैंक यू। इसीलिए तो ये व्यवस्था की है दोस्तों। दर्द के मामले में हमारे बच्चे जो यहाँ आते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, वो इतने उत्साहित रहते हैं। छोटे बच्चे, उनसे आमतौर पर कम गलती होती है तो उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो जब हम किसी और को दंड देते हैं तो वो उचकते हैं, लिटरली उचकते हैं। सर मैं दे दूं, सर मैं दे दूं। दे एंजॉय गिविंग 3D। उनको 3 के दंड देने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकदम सतर्क बैठे रहते हैं पूरी तरह से, और उनको 3D मिलता ही नहीं है। खट से सॉरी बोल देते हैं, खूब जोर से चिल्ला। तो कई बार आई मस्ट से, अगर जबलपुर की भाषा में हम बोले तो वो 3 का दंड देने के लिए बच्चे मर ही जाते हैं। They died to give 3D. Now who is rest for 3D? मेहता मैडम को तो नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे गलती हुई थी, और इस क्लास में गलती करने वाले को दंड नहीं होता, बल्कि सॉरी वाले को। और साकेत तो इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सॉरी। हाँ, now who is rest? Excuse me, sir. I रूपा want to. हाँ जी, come again please. I could not hear. Sir,
साकेत सेड आई हैव डिलीवर्ड। तो किसी ने भी मतलब नहीं बोला कि ये गलत है, तो मैंने फिर वही रिपीट कर दिया, जबकि आपने मुझे रिपीट करवाया था आई डिलीवर्ड। तो मैं डाउट में आ गई थी। हाँ, आपने बहुत सही। हम इस बार आपकी प्रशंसा पहली बार करने वाले हैं। आपने इस बार एक चीज को नोटिस किया कि साकेत ने भी परफेक्ट टेंस यूज किया था। अब इसको हम इस तरह से देख रहे हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन म्यूट करके सुनिएगा तो साफ सुनाई देगा। हमने परफेक्ट टेंस अभी नहीं दिया है। हम यहाँ पे मौजूद बच्चों से केवल उतनी अपेक्षा करते हैं जितना हमने उनको सिखाया। हमने इनको प्रेजेंट सिंपल सिखाया है, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ये टेंस अच्छे से दे दिए हैं फॉर्मूला सहित, और उसके पहले कैन, कुड, शुड और बी चैप्टर। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका जवाब गलत है या साकिब का गलत है। यहाँ इस चीज को इस तरह से देखिए कि जो जहां से सेंटेंस शुरू होगा बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे, और आपने जरा भी चेंज किया तो जो, जैसे स्नेहा है या रूपल है, ये लोग नए कैंडिडेट हैं, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला बोले कि ये वाला बोले, ये तो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है। इसलिए मुझे सावधानी रखना पड़ती है कि बिल्कुल एक सा सेंटेंस। थैंक यू। देखिए, अभी तक स्नेहा ने कुछ जवाब भी नहीं दिया और ना 3 का दंड नहीं भी नहीं दिया है। जब हमने उसका नाम पुकारा तो उसने यस सर बस बोल दिया था, और फिर रूपल का नाम पुकारा था, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया रूपल ने। रूपल एक तो विजिबल भी नहीं सर है। आई एम रेडी। ओके प्लीज। ओके प्लीज का मतलब है बोलिए जी। लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। डोंट गेट इनटू माय नर्वस। हाँ, ये आपको कहाँ से मिला रूपल जी? डोंट गेट इनटू माय नर्वस, मेरी नाक पे दम मत करो। इनका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तो शायद वो मेरी बात उन तक पहुंच नहीं। रूपल जी, मैं पूछ रहा हूँ आपको ये इंफेक्टिव सेंटेंस आवाज नहीं आ रही। हाँ, वही मुझे लग रहा था। आपका नेटवर्क सही नहीं। सर आपने भेजे थे व्हाट्सएप पे। हाँ, तो फिर अब उसको ग्रुप में। हाँ, थैंक यू। अब आप 1 सेकंड के लिए म्यूट कीजिए, तब आपको हमारी आवाज सही आएगी। सर आपने भेजे थे। सोनिका, हमारे बात तुम बोलना, फिर तरुण बोलेगा, फिर श्वेता। जी सर। सर आपने भेजे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है मेरे ख्याल से। वो बोल नहीं है यही, लेकिन 3 बार सुन चुके हैं अपन लोग। उनका माइक्रोफोन यहाँ में ऑफ दिखाई दे रहा है रूपा जी का, लेकिन एक सेंटेंस रिपीट हो रहा, 3 बार हो गया, सर आपने भेजे थे, आपने भेजे थे आप। ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम कुछ 5 सेकंड के लिए रुकना चाह रहे हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर मैं बोलूँ। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। तरुण। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक सर में दम मत करो। आवाज ही नहीं आ रही है सर, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है।
पहुंच रही थी, तो मजबूरी में हमें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा कि हमने उनको रिमूव किया है। अब वो डिस्कनेक्ट होंगी, फिर से कनेक्ट होंगी, तब उनका नेटवर्क। सोनिका, तुम्हारे पास शायद हमने श्वेता को बोला था, क्योंकि तरुण का जो नेटवर्क है वो क्या करता है, अपनी मम्मी से के मोबाइल से डेटा लेता है और अपने मोबाइल में करता है। तो अगर आप इस तरह से कर, आवाज भी सही नहीं आएगी और पीछे भी सही नहीं आती। श्वेता, आप बोलिए। यस सर। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। साकेत भैया। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। रोमिला मैडम। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। जूही। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। मान्या। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। स्नेहा। डोंट गेट, सर एक बार रिपीट। हेलो सोनिका, यू डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। साकेत। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। डोंट गेट इनटू माय नर्व, मेरी नाक में दम मत करो। सॉरी। डोंट गेट इनटू इसने कर लो। जूही, बोलिए। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। मैडम, आप बोलिए। सर योर वॉइस इज चॉपिंग। यस सर, जी, योर वॉइस इज चॉपिंग। हाँ, आज पूरे नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही है। के बैच में भी ठीक हो रहा था। पहले मुझे लगा कि जैसे मान्या का नेटवर्क में अभी, जैसे इस बार जब उन्होंने क्लियर नहीं था, पिछली बार वो बोल रही थी आ रहा था, साकेत का भी क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, भगवान की अच्छी कृपा है कि मैडम की स्पीच के दौरान नेटवर्क था। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि जो चल रहा है उसको चल रहा है, इसी की वजह से आगे बढ़, या लिए देना। आज की क्लास यहाँ आज पूरे में ही प्रॉब्लम। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। इससे अच्छा हम या तो हम करते हैं, आज उसकी स्पीड लेते नहीं है तरुण की, तरुण से बोल देते हैं, अगर तो तरुण सुन लो, म्यूट में। तो कल अपनी स्पीच देना और अपने मम्मा के मोबाइल से ज्वाइन कर स्पीच देना। तो चलिए हम थोड़ी देर और कुछ, अगर नेटवर्क में बहुत, तो फिर हम क्लास को आज फिर रोक देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं सोनिका से। सोनिका, स्क्रीन पे देखना, सीसी ऑन कर लो। प्लीज पुट योर सीसी ऑन and watch your screen. When I speak English sentence, watch your screen. But when I speak Hindi sentence, do not watch your screen. Otherwise, you will be confused. Okay.
ऊपर वाले का संदेशा आया है, सर जी रीजॉइन, सो आई एम डिस्कनेक्टिंग एंड रीजॉइनिंग, वेट फॉर सम टाइम। Hello, everybody. Good afternoon again. Juhi ji, am I audible to you now? Yes, sir, you are audible to me now. क्या क्या अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ सर, अब आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ऊपर वाले का धन्यवाद। अब आप आगे बढ़ाइए राउंड। Okay. Manya, am I audible to you? Yes, Dee, you're audible to me. Sonika, am I audible to you? Yes, Dee, you are audible to me. Saket bhaiya, am I audible to you? Yes, Sonika, you are clearly audible to me. Promila madam, am I audible to you? Yes, Saket, you are audible to me. Rupa, am I audible to you? Yes, Mehta ma'am, you are audible to me. Sonika, no, sorry, Sneha, am I audible to you? Yes, and you are audible to me. Who is rest? Tarun? I am rest. Shweta Didi, I am audible to you. Sorry. Yes. Am I audible to you? Yes, you are audible to me. Tarun, am I audible to am I audible to you now? Yes, you are audible to me. Sorry. Yes, you are audible to me now. So there. Thank you very much, everybody. तरुण, आज हम तुम्हारी स्पीच नहीं लेते हैं, फिर सीधे मम्मी के मोबाइल से ही कल स्पीच देना बेटा, ठीक है क्या? सर Yes, sir. सर एक बात हाँ, बोलनी थी। तरुण एक मिनट म्यूट करना। रूपल जी कुछ बोलना चाह रही हैं, मैं भी म्यूट करता हूँ। हाँ रूपल जी, अब आप बोलिए। सर मैंने जो इडियम्स बोली वो सही था। अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। हमने आपके चलते उस इडियम को पूरा राउंड चलवाया था। आप वो देखती हैं जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आती है? नहीं सर, यूट्यूब वाला रिकॉर्डिंग तो नहीं देखती हूँ। अच्छा, 3 बजे से एक बैच लगता है रूपल जी, 3 से 4। सर एक्चुअली मैं कोई... थोड़ी बीमार थी, इसी कारण ज्वाइन नहीं हुई। बस एक ही दिन ज्वाइन करी थी मैंने। चलिए मैं आपको सीधे बताता हूँ। आपके एक शब्द का उच्चारण जो था वो टेक्निकल शब्द है। आप नर्वस बोल रही थी, जबकि ये जो हमारी ये जो दिखती है ना, जिनको हिंदी में शिराएं कहते हैं, नर्व्स कहलाती, ये नर्व्स है जिसमें खून बहता हुआ, जिसमें इंजेक्शन लगता है। तो अंग्रेजी मुहावरा है, डोंट गेट इनटू माय नर्व्स। नर्व्स उसमें एस भी है, देखिए कई बार हाँ, गूगल हमारा उच्चारण सही नहीं होता है तो गूगल भी गलत लेता है। समटाइम्स गूगल टेक सम, एंड इफ आई स्पीक हिंदी, Google does not take it correctly. But if I continuously speak English as you are watching here, if your CC is on, now Google is taking every word correctly. But if I use any Hindi word, Google get confused.
Now you can watch your CC. Everything is coming clearly. Google is not making any mistake of spelling, any mistake of grammar. But when I speak Hindi and suddenly if I speak English, Google Meet gets confused. You can see. Okay, now if you heard me, you can repeat the interactive sentence. Let me go. मुझे जाने दो. Round the corner. नजदीक है. It goes well on you. ये आप पर जमता है. Thank you. Mute yourself, रूपल जी. दोस्तों, अभी एक चीज हमें और आपसे निवेदन करना सभी से, अगर आपका दूसरा मोबाइल आसपास रखा है तो भी गूगल मीट में प्रॉब्लम आती है. अगर उसी दौरान आपका कोई मैसेज आता है स्क्रीन पर या आपका कोई कॉल आता है, तब भी गूगल मीट डिस्कनेक्ट होता है. स्नेहा पोहानी लेफ्ट. देखिए स्क्रीन पे वही टेंस आया जिसमें अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. दिस इज पास्ट सिंपल टेंस. चलिए हम एक पूरा राउंड खेलते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद जूही जी. जूही जी, who delivered speech today? Sir, Mehta madam deliver speech today. Your Manya? answer is wrong. Just wait, please mute yourself. I'm asking to Manya. Manya, you can ask to Saket. Manya ji, who delivered speech today? Mehta ma'am delivered speech today. आज किसने स्पीच दी थी? आज मेहता मैम ने स्पीच दी. थैंक यू. Saket, who delivered speech today? Mehta madam delivered speech today. आज किसने स्पीच दी थी? आज मेहता मैडम ने स्पीच दी. सोनिका, who delivered speech today? Mehta madam delivered speech today. आज किसने स्पीच दी? आज मेहता मैडम ने स्पीच दी. Who is rest? Tarun, who delivered speech today? Mehta ma'am delivered speech today. आज किसने स्पीच दी? आज मेहता मैम ने स्पीच दी. रूपल दीदी, who delivered speech today? Mehta ma'am delivered speech today. रूपल दीदी, आज किसने स्पीच दी? मेहता मैम ने आज स्पीच दी. Who is rest? I am rest. Juhi थी. Juhi, who delivered speech today? Mehta madam delivered speech today. आज आज किसने स्पीच दी? आज मेहता मैम ने स्पीच दी. श्वेता, who delivered speech today? Mehta ma'am delivered speech today. आज आज किसने स्पीच दी थी? आज मेहता मैम ने स्पीच दी. Who is rest? I am rest. Didi. Who delivered speech today? Mehta madam delivered speech today. आज स्पीच किसने दी? आज मेहता मैम ने स्पीच दी. Who is rest?
I am rest. If nobody, अच्छा हाँ, thank you. I delivered speech today. आज मैंने स्पीच दी. Okay, guys, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Let's go ahead. Saket, who joined late today? सर सोनिका joined late today. आप काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं दोस्तों. आज कौन देर से आया था? सर आज सोनिका देर से आई थी. थैंक यू. तरुण, who joined late today? स्नेहा दीदी joined late today. तरुण, आज कौन देर से आया था? साकिब सर, आज स्नेहा दीदी देर से आई थी. मेहता मैम, who joined late today? रूपल joined late today. आज रूपल लेट आई थी. जूही. तरुण कम अगेन. मेहता मैडम ने प्रोसेस को गड़बड़ कर दिया है. मेहता मैम, आज लेट कौन ज्वाइन नहीं हुआ नहीं था? बेटा, फिर से पूरा करो. मेहता मैम, who joined late? Complete the sentence. Your sentence is incomplete. Mehta ma'am, who joined late today? You are You are mute. mute. Shweta joined late today. मेहता मैम श्वेता. आज बेटा कौन? तरुण, तुम ये जो बीच में इतना गैप कर देते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता कि तुम पूछने भी वाले हो कि नहीं. ये फिर से पूछो. पहले इंग्लिश पूछो और बिना गैप के हिंदी पूछना बेटा. कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है बेटा? नो सर. सांस वास की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर. तो जल्दी पूछ लिया करो. एक तो तुम दिखते नहीं हो, हम रिमूव कर ही दे रहे हैं तुमको. आज तुम दिखते भी नहीं हो तो आज तुम जाओ, ठीक है? दोस्तों चलो, सोनिका तुम मेहता मैडम से पूछो. हमने उसको रिमूव कर दिया, निकाल दिया क्लास. मेहता मैडम, who joined late today? रूपल joined late today. मैडम, आज कौन लेट आया था? आज रूपल लेट आई थी. Who is rest? Shweta, who joined late today? Shweta. Shweta is having network problem. Ask Manya. Okay. Manya, who joined late today? I joined late today. आज कौन लेट आया था? आज मैं लेट आई थी. Manya, please repeat your answer. I joined late today. No, your answer is incomplete. So I said I joined late today. Now today has come here on the screen. Last two times today was not coming on the screen and your voice is not clear. That's why I was confused. Okay. Firstly, before going ahead, जब भी मेहता मैडम आपसे पूछे तो सबसे पहले उनसे बोल दिया कीजिए कि मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ.
नहीं तो फिर वॉइस एकदम क्रॉस होती है और फिर सुनाई नहीं देती है। Okay. Who is rest? I'm rest. Drupadi, who joined late today? Manya joined late today. आज कौन लेट आया था? आज मान्या लेट आई थी. Who is rest? Yes, I am Sweta. rest. Juhi. I am Juhi. Sweta. Who joined late today? Sneha Di joined late today. आज कौन लेट आया था? आज स्नेहा दीदी लेट आई थी। हु इज रेस्ट? जी आई Yes, एम रेस्ट। स्नेहा दी हु ज्वाइंड लेट टुडे? आई एम ज्वाइन लेट टुडे। सॉरी Sorry. आई ज्वाइन लेट टू टुडे। सॉरी sorry. आई ज्वाइन सॉरी आई ज्वाइन सर लेट टू आज आई ज्वाइन लेट कौन आया था? आज श्वेता मैं अभी ही लेट रुको आई थी। प्लीज। श्वेता प्लीज वेट, शी डिड नॉट आंसर विद कॉन्फिडेंस। ओके सर। और तब तक रिपीट मत करना जब तक वो रिपीट करने वाला सेंटेंस ना बोलते। आज अपन लोग आराम से बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। यस सर। आई ज्वाइन साकेत पानी पियोगे? सर आई ज्वाइन टुडे। Sorry. Sorry. जब तक स्नेहा का सही नहीं हो रहा, मेरा बाकी लोगों से निवेदन है, शुरू में जब आप बोलते थे दोस्तों कि हु इज रेस्ट, तो उस समय मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि आपकी जुबान से एक इंग्लिश का लेटर, एक सेंटेंस निकलता था। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, हमें यहाँ पे रूपल लिखा हुआ दिख रहा है, उसके बाजू में प्रमिला मैडम लिखा दिख रहा है, जूही लिखा दिख रहा है, मेरी स्क्रीन के आगे यू लिखा हुआ है, नीचे यहाँ लेफ्ट में मान्या लिखा दिख रहा, मान्या दिख भी रही है, उसके बाद श्वेता लिखा हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ स्नेहा लिखा दिख रहा है, स्नेहा भी दिख रही है, फिर साकेत दिख रहे हैं, और इसके बाद साकेत के पिक्चर के ऊपर 2 अदर्स हैं, तो वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो आप एकदम से, अब अगर किसी ने पूछा वो इस रेस्ट मतलब शुरू में ही, तो उसको मैं सीधे 5 का दंड दूंगा। आपको केवल इंग्लिश ऐसे नहीं आएगी दोस्तों, आपको पूरे समय अटेंटिव रहना ही होगा। यू मस्ट बी अटेंटिव all the time, every second. You cannot be absent-minded in this class. अभी जो प्रमिला मैडम ने तारीफ की थी, उसका कारण ये नहीं है, हम इन कुछ और चीजों पे भी बहुत कड़ाई से ध्यान देते हैं, हम यहाँ पे कठोरता अपनाएंगे आपके साथ। बिना सोचे समझे हु इज रेस्ट मतलब 2 लोगों ने एक दूसरे से पूछा, उसके बाद अगर आप में से किसी ने भी हु इज रेस्ट बोला, सीधे 5 का दंड, अगली बार पढ़ा के 10 का करेंगे।
सब नाम दिख रहे हैं स्क्रीन, आपको दिख रहा है। और हाँ, एक बात हम आपको और बताते हैं, आप अगर खुद नहीं कर सकते तो अपने बच्चे की, पड़ोसी की मदद लीजिए। इसमें ये जो फॉन्ट साइज है काफी बड़ा हो जाता है। हम आपको चाहे तो दिखा भी देते, चलिए हम करके दिखा देते इसी बात। आप सब लोग हमारी आवाज सुन पाएंगे, हमारा चित्र नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। हमने 3 बिंदुओं पर टच किया, हमारे पास सामने 6 ऑप्शन खुल गए। बीच वाले ऑप्शन को हमने टच किया। अब वो पूछ रहा है पीपल विल सी एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशंस। तो हम कैंसिल ना करके उसको स्टार्ट शेयरिंग कर रहे हैं। फिर उसने पूछा जीमेल विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। तो आई एम स्विचिंग स्टार्ट नाउ। हमने स्टार्ट नाउ का बटन दबा दिया। नाउ यू कैन वॉच माई स्क्रीन। नाउ आई एम गोइंग बैक टू am I audible to you, Saket? Yes, sir. You are clearly audible. अब हम अपने मोबाइल को पहले तो वर्टिकल कर रहे हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। अगर आपको वर्टिकल करने की जरूरत पड़े तो आप भी कर लीजिएगा। हमारे स्क्रीन पे ऊपर लेफ्ट में सबसे पहले एक सेटिंग नाम का लोगो बना हुआ है, मैं उसको टच कर रहा हूँ। ये सेटिंग्स खुल गई। अब मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, आप देखिएगा। अब ये फोन मेरे लिए नया है इसलिए मुझे भी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मैं एडिशनल सेटिंग को टच कर रहा हूँ। ये मैंने किया। टाइम, डेट, लैंग्वेज, इनपुट रीजन, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, बटन, शॉर्टकट, क्लियर स्पीकर, वन हैंड मोड, एवरीथिंग। इसमें मुझे वो नहीं मिला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बैक हो रहा हूँ तीर के निशान से। अगर किसी को पता हो कि मैं कहाँ से अपने लेटर के फॉन्ट को बढ़ा सकता हूँ तो वो बता सकता है। डिस्प्ले पे मैं जा रहा हूँ और डिस्प्ले में कलर स्कीम, हाँ ये आ गया टेक्स्ट साइज। ये देखिए मैं टेक्स्ट साइज को टच कर रहा हूँ और हमारे इसमें स्मॉल, यहाँ नीचे स्क्रीन पे देखिए एस लिखा हुआ है ब्लू कलर से। हम उसके एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये एल हो गया। अब देखिए मेरे टेक्स्ट का यानी मेरे लेटर्स का साइज बढ़ गया। अब मैं उसको एक और बढ़ा रहा हूँ, ये एक्सेल हो गया। और इसके बाद एक ऑप्शन और है डबल एक्सेल। तो डबल एक्सेल बहुत बड़ा हो जाएगा, भद्दा लगेगा, तो मैं एक्सेल कर लेता हूँ और वापस आके देखता हूँ कि मेरे लेटर बड़े दिख रहे हैं कि नहीं तो फिर मैं बाद में आके इसको फिर से सेटिंग करूंगा। अब मैं वापस आ गया हूँ, आपको मेरे फोन का फेस दिख रहा है। अब मैं बैक होके, ये देखिए आपको सब दिख रहा होगा। यहाँ व्हाट्सएप है, डिस्प्ले को मैं हटा देता हूँ। जीमेल से अपन जुड़ते हैं और मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ। नाउ आई एम बैक। हमारे साइज यहाँ पे लेटर का साइज बढ़ गया है। अब मैं स्टॉप शेयरिंग को टच कर रहा हूँ। नाउ आई एम स्विचिंग ऑन माय कैमरा। और आपको कोई और समस्या कभी आए तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं अगर बहुत अच्छे से नहीं बता पाया तो मैं अपने बेटे को बुला के, क्योंकि वो मुझसे बहुत एक्सपर्ट है मोबाइल के मामले, आपके बच्चे भी होंगे नाती पोते, तो आप उनकी मदद ले। अब मुझे यहाँ पे साकिब का नाम काफी बड़ा दिख रहा है। दूसरे नंबर पे मुझे यहाँ मान्या जी दिख रही है, उनका नाम भी दिख रहा है। श्वेता दिख नहीं रही, श्वेता इज नॉट विजिबल बट हर नेम इज विजिबल। यहाँ पे लेफ्ट में नीचे जूही जी इज विजिबल, हर नेम इज बिग लेटर। अब देखिए मेरे स्क्रीन पे सारा ये जो टेक्स्ट है इतने बड़े बड़े में आने लगा है। तो आप जैसे
मेहता मैडम है वो एक्सेल कर सकते हैं अपने लेटर्स को। सेटिंग में जाके एक्सेल दबाइएगा तो लेटर सारे बड़े बड़े हो जाएंगे। और जिसको किसी और को भी अगर समस्या सुनने का, इफ यू हैव प्रॉब्लम जूही जी, इफ यू हैव प्रॉब्लम, यू कैन गो टू सेटिंग्स ऑफ योर फोन, और आप अलग से फोन करके भी कोई समस्या हो तो हमें व्यक्तिगत फोन करके भी इससे रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड पूछ सकते हैं। दोस्तों आज मैं दोपहर के बैच में मौजूद नहीं रहता हूँ जो मैडम लेती हैं, लेकिन उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। स्नेहा को वहाँ आना चाहिए। स्नेहा शुड ज्वाइन द प्रैक्टिस बैच। अभी स्नेहा, हम तुमसे कोई रिस्पॉन्स चाहते नहीं, डू नॉट ट्राई टू गिव एनी रिस्पॉन्स, एक्चुअली इट इज फॉर योर बेटरमेंट, ये आपकी भलाई के लिए। बट इफ यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर एक्सेप्ट इट। अगर आप इसका लाभ नहीं उठाना चाहते तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। फॉरगिव मी फॉर दैट, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इमेजिनरी राउंड खेलते हैं। साकेत से ही शुरुआत करते हैं हम। सबको अलग अलग नाम लेना है जो जिसको पसंद हो। साकेत, who acted well in this movie? अमिताभ बच्चन acted well in that movie. इस मूवी में किसने अच्छा काम किया था? उस मूवी में अमिताभ बच्चन ने अच्छा काम किया था। हाँ, अब सभी लोग सुन लें, आंख खोल के सुने, खोल के तो 27 साल से सुन रहे हैं। अमिताभ बच्चन is used. If anybody uses it again, he will get 3D. साकेत, आप जूही जी से पूछें। जूही मैडम, who acted well in this movie? Katrina Kaif acted well in that movie. इस मूवी में किसने अच्छा काम किया था? कैटरीना कैफ ने इस मूवी में अच्छा काम किया था। सॉरी फॉर हिंदी। जूही जी आप। इस मूवी में कैटरीना कैफ ने अच्छा काम किया। सॉरी सर, am I right ना? एक मिनट रुकिए जूही जी। श्वेता आप बताइए सही हिंदी क्या होगा? उस मूवी में सर उस बिकॉज शी यूज्ड दैट ओके। थैंक यू। कैटरीना कैफ ने उस मूवी में अच्छा काम किया। जूही जी आप सोनिका से पूछिएगा। जूही जी। सोनिका, who acted well in this movie? Akshay Kumar acted well in that movie. इस मूवी में किसने अच्छा काम किया था? उस मूवी में अक्षय कुमार ने अच्छा काम किया था। सोनिका आप मान्या जी से पूछें। मान्या दीदी, who acted well in this movie? Amir Khan acted well in that movie. इस मूवी में किसने अच्छा काम किया था? आमिर खान ने उस मूवी में बहुत अच्छा किया। मान्या जी आप श्वेता जी से पूछें। श्वेता, who acted well in this movie? शाहिद कपूर एक्टेड वेल इन दिस मूवी। इस मूवी में किसने अच्छा काम किया था? इस मूवी में शाहिद कपूर ने अच्छा काम किया था। श्वेता जी आप प्रमिला मैडम से पूछिए, मेहता मैडम से पूछिए। मेहता मैम, हु एक्टेड वेल इन दिस मूवी? मेहता मैम, हु एक्टेड वेल इन दिस मूवी? मनोज कुमार एक्टेड वेल इन दैट मूवी। इस मूवी में किसने अच्छा काम किया था? उस मूवी में मनोज कुमार ने अच्छा काम किया था। थैंक यू। आप स्नेहा से पूछिए।
Sneha, who acted well in this movie? Salman Khan acted well in this movie. इस मूवी में किसने अच्छा काम किया था? उस मूवी में सलमान खान ने अच्छा काम किया था। अब अगर स्नेहा पूछती है हु इज रेस्ट, तो वो उचित होगा। पूछो बेटा। रूपल आंटी। नहीं, वो पता है, वो बात अलग है, लेकिन अब तुम पूछो जानबूझ के। अच्छा, हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। Who actors well in this movie? ऐश्वर्या। सॉरी स्नेहा। रूपा जी, आप जवाब देने की जल्दबाजी न करें, पहले देख ले सही लिखा हुआ आया है या नहीं, या सुन ले सही बोला गया है कि नहीं। Who acted well in this movie? ऐश्वर्या रॉय acted well in that movie. इस मूवी ने किसने अच्छा काम किया था? ऐश्वर्या रॉय ने इस मूवी में अच्छा काम किया था। हु इज रेस्ट? रूपा जी, पहले आप हमारे साथ 3 बार बोले। ऐश्वर्या, 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 ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। इस बार गूगल ने आपका ऐश्वर्या सही लिया, ये देखिए स्क्रीन पे। एक्चुअली सर, मेरा एस का प्रोनाउंसिएशन क्लियर है ही नहीं। इस क्लास में प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर, मेरी बॉर्न से प्रॉब्लम है ये। उसका इलाज है हमारे पास, डोंट वरी। क्योंकि अगर पहले तो आप म्यूट करके सुने कि अगर ये क्लास फिजिक्स की होती, केमिस्ट्री की होती, बायो की होती, कॉमर्स की होती, आर्ट्स की होती, तो हमें आपके उच्चारण से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये इंग्लिश की क्लास और यहाँ उच्चारण का सटीक होना जरूरी है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे अगर आपका उच्चारण सा और शाकर सही नहीं है और किसी ने बोला किसी से शिट हियर, शिट हियर, अब हम आपको बताते हैं इसका अर्थ क्या निकल रहा है। हमें आपको बकायदा लिख के दिखाना पड़ेगा। जो समझ गए होंगे वो कैमरे के पीछे मुंह दबा के जरूर हंस रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। हम आपको लिखने से पहले ही बता देते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पॉटी कीजिए, शिट हियर यानी यहाँ पर पॉटी कीजिए। कैसे होता है देखिए, मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ। अगर आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल नहीं है यानी ऐसा लेटा हुआ नहीं है तो आपको बोर्ड पूरा नहीं दिखेगा, और अगर आपने हमारे चित्र पर डबल टैप नहीं किया है तो ये बड़ा नहीं दिखेगा। हाँ, हम एक एक से पूछ के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान्या से पूछते हैं, देखते हैं वो प्रश्न के जवाब देने में अभ्यस्त हो गए हैं या नहीं। मान्या जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बैठना? द वर्ब फॉर बैठना शुड बी सिट। थैंक यू। आपने बिल्कुल फ्लो में आंसर दिया। हम यही चाहते हैं। आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है, आपने लेट एडमिशन लिया है, लेकिन आपने पिकअप कर लिया। थैंक यू। अब हम रूपा जी से हम बाद में पूछेंगे। प्रमिला मैडम से पूछते हैं, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बैठना? मेहता मैडम। मेहता दी, we were in you. The verb should be बैठना is sir V1। सॉरी, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए।
चलो श्वेता से पूछते हैं। श्वेता, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बैठना? The verb for बैठना should be sit. थैंक यू। बैठने के लिए क्रिया कौन सी होनी चाहिए श्वेता? बैठने के लिए सिट क्रिया होना चाहिए। थैंक यू। साकेत, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ सिट? The spelling of sit should be SIT. सिट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? सिट की स्पेलिंग SIT होना चाहिए। थैंक यू। रूपल मैडम, व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ सिट? Sit, sit. Thank you. Mute yourself. Sneha, what should be the second form of sit? मान्या, बेटा कुछ पूछने आया था क्या? नो सर। हाँ, देखने आया था। सर वो मेरा बेटा पूछने आया था। My son was asking that Mama you need charger otherwise give it to me. हाँ हाँ हाँ। Okay, स्नेहा बेटा बोलो, what should be the second form of sit? The second form of should be sit, sit, sit. Thank you. Mute कर लो। Sunika, what should be the second form of sit? The second form of sit should be set. Thank you. Who is rest? जिससे मैंने अभी तक एक सवाल ना किया हो, प्लीज। I am rest. Okay, Mehta madam, what should be the spelling of sit? Set, sorry, spelling of set. S-A. The spelling of set is S-A-T. Thank you. Mute yourself. Manya, what should be the spelling of set? The spelling of set should be SAT. ये बिल्कुल सही जवाब है मेहता मैडम। आपको और अभ्यास करना होगा सुनने का। थैंक यू मान्या। सामने एक की मात्रा और टच का सेट। रूपल मैम, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ सेट? Sit, set. The third form should be sit, set, set. Set. Thank S-A-T. you. Yes, sir. Sneha, beta, what should be the third form of sit? Sir, I don't. Very good. Mute yourself. Saket, what should be the third form of sit? The third form of sit should be set. Thank you. Shweta, what should be the spelling of set? The spelling of set should be SAT. Thank you. Set की spelling क्या होना चाहिए? सेट की स्पेलिंग SAT होना चाहिए। Thank you. Sonika, what should be the verb for mal त्याग करना? The verb for mal त्याग करना should be shit. Thank you. Manya ji, what should be the spelling of shit? The spelling of shit should be SHIT. Very good. सभी लोग देखें, चक्कर वाला है और ये सात सरोते का है। हमें बचपन में सात सरोते का शक्कर का सिखाया गया था और आपने धोखे से अगर बोल दिया शिट ही है, जैसे कई बार बच्चे आके गलत उच्चारण करते हैं, सर कहना है शिट ही है, तो हम उनसे बोलते नो नो नो, गो टू बाथरूम, टॉयलेट इज देयर, गो एंड शिट ओवर देयर। कितना ज्यादा अंतर पड़ता है। सर गूगल स्पेलिंग थोड़ा सा अब हाँ, स्पेलिंग तो कोई बोलेगा नहीं ना बेटा, वहाँ कोई स्पेलिंग की बात तो करेगा नहीं, वो तो देखेगा। गूगल में स्टार लगा के आ रहा है।
हाँ, गालियों को वो एक्चुअली प्रतिबंधित कर देता है, तो इट इज ए काइंड ऑफ अब्यूज। थैंक यू गूगल। बट गूगल, आई एम नॉट यूजिंग शिट एज ए abuse. Double star is coming. Okay. Uh, Sneha beta, what should be the second form of shit? The second form of should be shitted. Thank you. Very nice. Good effort. Mute yourself. Rupalji, what should be the second form of shit? The second form should be shit set. Sorry, shitted. Thank you very much. Mute yourself. Mehta madam, what should be the second form of shit? The second form of shit is shitted. Thank you. Sakib, what should be the second form of shit? The second form of shit should be shitted. Thank you. Sonika, what should be the second form of shit? The second form of shit should be shitted. Thank you. Manyaji, what should be the second form of shit? Sir, actually I don't know. Thank you very much. Shweta, what should be the second form of shit? The second form of shit should be shed. Thank you. किसी को नहीं पता है। दोस्तों, बहुत मजेदार बात यह है कि ऐसी कुछ क्रिया है जो आप जानते हैं जिनमें अंत में टी आता है और उनके तीनों रूप एक से होते हैं। बताइए किसको कौन सी पता है? Put, cut, knit. हाँ, जब हम इस तरह का सवाल करें तो एक जवाब दिया करना, जैसे पुट पुट पुट, बस इतना बोल के तुम चार सकता है। बोलो। Okay sir. Put. हाँ, बस अब रुको, अब देखते हैं किसी और को बोलने तो उसको कौन सी पता है। Read. बिल्कुल गलत जवाब, ये तो हमने लिखवाई भी है दोस्तों। इसके तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग एक सी होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म का उच्चारण रेड होता है, थर्ड फॉर्म का उच्चारण भी रेड होता है। रीड, रेड, रेड। अच्छा हुआ इन्होंने चर्चा कर ली, पता चल गया। रुपल जी, अगर आप वर्ब्स अपडेट नहीं करेंगी, केवल व्हाट्सएप में छोड़ देंगे, ये केवल हम रुपल जी से नहीं बोल रहे हैं, ये स्नेहा से भी बोल रहे हैं, मान्या से भी बोल रहे हैं, जो भी लेट आया है वो व्हाट्सएप में से देख के आप बाकायदा अपने रजिस्टर को मेंटेन करें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपकी हैबिट में नहीं आएगा और आपके जहन में वो वर्ब नहीं आ पाएंगे। तो और कोई पता है? ये तो गलत हो गया रुपल जी का जवाब, और किसी को पता है? कुछ तो हो गया। कट 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 कट। बिल्कुल सही, कट कट कट। और भी बहुत सारी हैं, और बताइए। Sir, can I? हाँ श्वेता, अब तुम बताओ। Knit. हाँ, स्पेलिंग बताओ। KNIT. बेटा स्पेलिंग ऑलरेडी गूगल ने लिखी दी थी, लेकिन हमारा पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि पता तो चले कि साइलेंट वर्ड क्या है। तुमने जैसे ही बोला ना, गूगल ने तीनों स्पेलिंग लिख दी थी। Yes sir, I see. ओके, थैंक यू। बेटा यहाँ तुम्हें बोलना चाहिए यस सर, आई सॉ। Sorry sir. अभी हम पास्ट सिंपल का ही तो प्रयोग सिखा रहे थे आप, और जैसे ही कोई डिस्कनेक्ट होता है लिखा आता है ना क्या, जैसे थर्ड से लिखा जाता है एकदम ऑटोमेटिक। ओके, तो देखिए दोस्तों, चलिए हम सोनिका से पूछते हैं। सोनिका, हैव यू रिटन बोथ द वर्ब्स?
Yes, sir, I have written both the verbs. क्या आपने दोनों क्रियाएं लिख ली? हाँ सर, मैंने दोनों क्रियाएं लिखी। तो रूपल जी, यहाँ पे उच्चारण पे बहुत ध्यान रखना होगा। आपने गलती से, अगर हमने एक मंत्र दिया है सोनिका साकिब इस बैच में, यस सर, दिया है कि नहीं? कौन सा? ये है डोंट ट्रैवल अंटिल ट्रैवल सी। ये तो इससे रिलेटेड नहीं है बेटा। चलिए हम आपको कल लिखवाएंगे, आप याद दिलाइएगा। ऐसे ही एक बार बोल देते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. और हम इसको कल बोर्ड पे लिखवा देंगे और व्हाट्सएप में भी इसको बढ़िया अच्छे से टाइप करके भेज देंगे, डोंट वरी। लेकिन इसको हमने मंत्रा का नाम इसलिए दिया है दोस्तों कि जिस तरह हम मंत्र का बार बार ऐसे जाप करते हैं, आपने देखा होगा बुजुर्गों को, आपको इन सेंटेंसेस का बार बार प्रयोग करना होगा, तब आपकी जुबान की वो कमी दूर हो जाएगी। हमने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जिनका ये उच्चारण, और जबलपुर में तो हम आपको बताए माने जी कि बच्चों के उच्चारण में बहुत खराबी और कमी होती है। महानगरों में नहीं पाई जाती है ये, लेकिन यहाँ ग्रामीण बच्चों के सा सरोते का, ये सा सरोते का है, देखिएगा हम बहुत बड़े लेटर में लिख रहे हैं। ये तभी सही निकलेगा जब आपकी जुबान बिल्कुल सीधी जाएगी। सा सा, देखिए हम बड़ा करके बताते हैं, सा। और ये शा शक्कर का अगर बोलना है आपको, तो ये तभी सही निकलेगा जब आपकी जुबान तालु में ऊपर जाके टकराएगी। शा शा सा शा, सा सरोते का, शा शक्कर का, शा शक्कर का, सा सरोते का। इसमें आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, आप हम भी ढूंढ के याद रहा तो शेयर करेंगे। इसके पहले कि हम क्लास को विराम दें, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? क्या किसी को कुछ कहना या पूछना? यस सर, जी, वो वाला जो राउंड था ना, हु जॉइंड लेट टुडे, है ना? हाँ वो आदित्य, तो उसका मतलब मेरे से नहीं पूछा गया, तो आई आंसर्ड, मतलब मेरे से कोई पूछता मैं पूछ लेता हूँ, हु यस, जॉइंड लेट टुडे? झा सर जॉइंड लेट टुडे। आज कौन देर से आया था? आज झा सर देर से आए थे। हमें बड़ा अच्छा लगा। एक तो हम एक बार पहले भी हमने आपकी तारीफ की थी कि आपकी जो वॉइस है काफी बैलेंस्ड होती है और आप एंजॉय भी कर रही हैं। थैंक यू सर। आपके जवाब को सुन के हो सकता है सोनिका को आश्चर्य हो रहा हो या किसी और को कि अरे कैसे बोल दिया उन्होंने। भाई दिस इज इमेजिनरी आंसर एंड इट इज करेक्ट आंसर। तुम लोग तो 4:30 बजे से आ चुके थे, हम तो आए 4:45 या 5 बजे। तो बिल्कुल सॉरी सर, सही। बट नहीं 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 अरे हम आपको बताएंगे आगे चल के ग्रामर में। इस क्लास में सॉरी अलाउड नहीं है, मतलब उस सेंस में जैसा आप लोग बोलते ना। यहाँ पे दूसरे के लिए सॉरी बोलना आपके जागने का संकेत देता है कि जैसे किसी ने गलती की, सॉरी। तो वो हमने सॉरी को इस परिप्रेक्ष्य में ले लिया, इस स्वरूप में ले लिया है। तो आपको अपने लिए सॉरी बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास में गलतियों को भी सम्मान दिया जाता है। आपने देखा अभी प्रमिला मैडम से गलती हुई थी, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं दंड नहीं दिया, बल्कि आप सबको जो सो रहे थे, लेकिन जो दंड दिया हमने, भले ही उसका नाम दंड है, लेकिन देखिए उसके बहाने एक तो रूपल जी का एक कंफ्यूजन दूर हो गया। वो नर्वस सोचती थी, और वो है नर्व्स। ये नर्व्स जो दिखती है, ये है नर्व्स। एक्चुअली वो ब्रेन की नर्व्स के लिए ही कहा गया है।
कि डोंट गेट इनटू माय नर्व्स। सर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा क्लियर नहीं है, इसीलिए, वरना मैं नर्व्स ही बोलना चाह रही थी। हम एक चीज आपको अभी तुरंत भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें आवाज आप तक आएगी कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं गायब हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए और आपको अपने मोबाइल को सीधा करना होगा। ये देखिए जूही जी, माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? Yes, sir, your screen is visible. अब देखिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ SHIT और यहाँ स्पेस दिया मैंने, यहाँ मीनिंग भी लिख देता हूँ NE, और यहाँ नीचे बोर्ड ने पहले ही ले लिया हमारे टाइपिंग बोर्ड में मीन्स, और मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए नीले रंग का आपको एक स्पीकर दिखाई दे रहा है, मैं उसको टच कर रहा हूँ। आपको आवाज आएगी कि नहीं मुझे पता नहीं। अब सबसे अच्छी बात देखिए इसमें, वो होंठ भी दे रहे हैं आजकल। हमने होंठ पे टच किया, ये देखिए वो आपके होंठ कैसे जाना चाहिए ये वो बता रहा। आपको आवाज सुनाई दे रही है इसकी आवाज जूही जी? नो सर, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लिप सिंक दिखाई दे रही है। हाँ, ये प्रॉब्लम, हम अगर वीडियो चलाएंगे भी तो शायद आपको आवाज नहीं आए, फिर भी हम चला के देखते हैं, अगर आप आवाज आए तो बताइए। आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं सर। नो सर। हाँ तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको खुद करना होगा। अब ये जो भी प्रॉब्लम है टेक्निकल, या तो मैं अपने बच्चे से पूछूंगा कि इसमें अगर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आवाज पहुंचेगी कैसे। हो सकता है कहीं जाके चेंज करना पड़े, सेटिंग में जाके करना पड़े। चलिए दोस्तों, तो हम इसके साथ यहाँ पे विराम देते हैं अपनी क्लास को। अब और भी कोई चीज प्रश्न हो अगर आपको, तो आप हमसे अलग से भी कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.